اس کہانی میں دکھایا جاتا ہے ایروپلین جو اڑتا ہوا جنگل کے بیچ اترتا ہے۔ اس کے اندر کچھ لوگ ہوتے ہیں۔ ایک آدمی جو ٹھیک سے چل بھی نہیں سک رہا تھا، وہ اسٹک کی مدد سے چل رہا تھا۔ اس کے ساتھ ایک اور بھی آدمی تھا جو کہ اس کا ملازم تھا۔ وہ دونوں ایک گفا کے پاس جا کر رک جاتے ہیں اور وہ آدمی اسے کہتا ہے کہ تمہیں ڈاکٹر کی ضرورت ہے۔ وہ آدمی کہتا ہے کہ میں خود ایک ڈاکٹر ہوں۔ اس کا نام تھا مائیکل۔ وہ گفا کے پاس رک کر اپنا ہاتھ کاٹتا ہے اور گفا کے اندر سے بہت سارے بیٹس باہر آتے ہیں۔ مائیکل وہ سارے بیٹس ایک صندوق میں قید کرنے آیا تھا کیونکہ اسے ان کی ضرورت تھی۔ اور اسی کہانی میں 25 سال پہلے دکھایا جاتا ہے ایک اسکول جہاں بہت سے بچے تھے۔ اسکول کے پاس ہی ایک ہاسپٹل تھا جہاں ایک چھوٹا بچہ ایڈمٹ تھا۔ اس کا نام تھا مائیکل۔ ہاسپٹل میں ایک اور بچہ ایڈمٹ ہونے آتا ہے اور ڈاکٹر نیکلس اسے مائیکل سے ملواتا ہے اور اس کے برابر والے بیڈ پر ہی ایڈ کرتا ہے۔ مائیکل اس لڑکے کو مائلو بول رہا تھا۔ وہ لڑکا بولتا ہے میرا نام لونسینل ہے، کیا مجھ سے پہلے یہ بیڈ کسی مائیکلو کا تھا؟ وہ بولتا ہے اس بیڈ پر تم سے پہلے اور اس سے پہلے بھی ایک لڑکا تھا جسے میں مائلو بلاتا تھا۔ لونسینل کہتا ہے کہ تم یہاں کب سے ہو؟ مائیکل کہتا ہے کہ میں یہاں بچپن سے ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ تم پھر بھی ٹھیک نہیں ہوئے۔ مائیکل کہتا ہے کہ یہ بیماری کبھی ختم نہیں ہونے والی۔ وہ دونوں ایک ہی بیماری کے شکار تھے۔ انہیں زندہ رکھنے کے لیے دن میں 3 بار ان کا بلڈ چینج کیا جاتا تھا۔ ان کی بیماری کا کوئی علاج نہیں تھا، وہ صرف ٹیمپریری علاج پر چل رہے تھے۔ ون ڈے لونسینل کو بلڈ چڑھتا ہے لیکن اچانک مشین خراب ہو جاتی ہے اور وہ بے ہوش ہو جاتا ہے۔ مائیکل ڈر جاتا ہے، اسے آواز لگاتا ہے اور اس کے پاس جا کر بیٹھ جاتا ہے اور مشین کو ایک اسپرنگ سے ٹھیک کر دیتا ہے اور پھر وہ ہوش میں آ جاتا ہے۔ ڈاکٹر نیکلس مائیکل کی یہ خوبی جان کر حیران رہ جاتا ہے کہ اس عمر میں وہ اتنا سمجھدار ہے۔ وہ مائیکل کو بولتا ہے نیو یارک میں تم جیسے بچوں کے لیے ایک اسکول ہے، اگر میں بات کروں گا تو تمہاری فیس بھی معاف ہو جائے گی اور اس بیماری کے لیے تمہیں پرائیویٹ علاج بھی ملے گا۔ مائیکل اس کی بات مان جاتا ہے اور وہ لونسینل کے لیے ایک لیٹر چھوڑ دیتا ہے۔ لونسینل وہ لیٹر پڑھتا ہے جس میں لکھا تھا میں وعدہ توڑ رہا ہوں، بس اس بیماری کا علاج ڈھونڈنے جا رہا ہوں، جیسے ہمارا بڑھاپا ساتھ گزرے اور ہم سمر ویکیشن میں ضرور ملیں گے۔ اور اچانک وہ لیٹر اس کے ہاتھوں سے پھسلتا ہوا باہر چلا جاتا ہے۔ مائلو وہ لینے باہر جاتا ہے۔ اسکول کے بچے وہ لیٹر اٹھا لیتے ہیں اور مائلو کا مذاق اڑاتے ہیں۔ وہ غصے میں آ جاتا ہے اور اپنی اسٹک سے ایک بچے کو مارتا ہے اور اسکول کے سارے بچے مل کر اسے مارنے لگتے ہیں اور تبھی اس کا فادر ڈاکٹر نیکلس آ جاتا ہے اور اسے بچا لیتا ہے۔ اور پھر بہت وقت کے بعد دکھایا جاتا ہے مائلو کو جو اب جوانی میں آ چکا تھا۔ وہ ایک بہت بڑا ڈاکٹر بن چکا تھا جو خون کی بیماری کا سب سے بڑا ڈاکٹر تھا۔ اس نے ایجاد کیا تھا آرٹیفیشل بلڈ اور اس کے آرٹیفیشل بلڈ سے بہت ساری جانیں بچی اور بچ بھی رہی ہیں۔ وہ ایک بڑے سے فنکشن میں بیٹھا ہوا تھا جہاں اسے ایوارڈ ملنے والا تھا۔ اور پھر دکھایا جاتا ہے نیو یارک سٹی میں ایک ہاسپٹل جہاں مائیکل کام کرتا تھا اور ایک لڑکی دکھائی جاتی ہے جو اس کی پیشنٹ تھی۔ اس کا نام تھا اکم، وہ بھی بلڈ کی مریض تھی۔ اور ایک لیڈی ڈاکٹر جس کا نام تھا مارٹن، وہ مائیکل کو پسند کرتی تھی۔ وہ مائیکل کے پاس آتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تم نے غلط کیا ہے، تم نے انسانوں اور بیڈز کے ڈی این اے کو ملا دیا ہے۔ وہ بولتا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے اور مارٹن تبھی اسے وہ قید کیے گئے بیڈز دکھاتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ تمہارا ہی ہو سکتا ہے کام۔ وہ کہتا ہے کہ ہاں، لیکن تم ان سب سے دور رہو۔ اور پھر وہ اسے سمجھاتا ہے کہ یہ بیڈز صرف خون پیتے ہیں اور خون کو ہضم کرنے کے لیے ان بیڈز کی سلائیوں میں ہوتے ہیں کچھ خاص اینٹی کوگلونولز۔ وہ کہتی ہے کہ کیا تم یہ اپنے ڈی این اے میں ایڈ کرو گے؟ وہ کہتا ہے کہ ہاں، اس سے علاج ممکن ہے۔ مارٹن بولتی ہے کہ یہ غلط ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ مجھے رسک لینا ہی ہوگا۔ وہ اینٹی ڈوٹ تیار کرتا ہے اور ایکسپیریمنٹ ایک ریٹ پر کرتا ہے۔ وہ ریٹ کو ایک انجیکشن دیتا ہے، اس کے بعد وہ تڑپ کر گر جاتا ہے۔ مائیکل مایوس ہو جاتا ہے، اسے لگتا ہے کہ یہ مر گیا۔ مارٹن اس کا حوصلہ افزائی کرتی ہے لیکن وہ اداس ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے بہت پہلے مر جانا چاہیے تھا کیونکہ میں نے ابھی تک اپنی بیماری کا علاج نہیں ڈھونڈا، مجھے اپنے دوست کو بچانا ہے، مائلو کو۔
जो इसी बीमारी का शिकार है जिसका मैं हूँ। और तभी एक नर्स आती है और कहती है कि हुक्म की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। वो जल्दी से वहां जाते हैं। माइकल उसे इंजेक्शन देता है और मार्टिन देखती है कि वो रेट जिंदा था। वो माइकल को बताती है और वो खुश हो जाते हैं। और फिर वो अपने बेस्ट फ्रेंड से मिलने उसके घर जाता है। माइलो जो अब बहुत ही ज्यादा अमीर था, बहुत से लोग उसका काम करने के लिए उसके घर में मौजूद थे। माइकल उसे बोलता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए खुशखबरी है, इसलिए तुम्हें मेरे साथ बाहर जाना होगा। और फिर वो दोनों मिलकर कहीं बाहर जाते हैं। वो गार्डन में बैठ जाते हैं। माइकल उसे बताता है कि एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट करने वाला हूँ। वो है तो एक गैर कानूनी और उसमें खर्चा भी बहुत है। माइलो कहता है कि क्या हम ठीक हो सकते हैं? माइकल कहता है कि हाँ, क्योंकि अब हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, ये आखिरी कोशिश हो जाए। माइलो कहता है कि ठीक है, तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं दूंगा। उसके बाद माइकल एक शिप पर जाता है जो समंदर के बीच थी। वो कुछ आदमी और मार्टिन के साथ उसके अंदर दाखिल होता है। वो आज एक्सपेरिमेंट अपने ऊपर करने वाला था। शिप के अंदर एक बहुत बड़ी लैब थी जहां वो एक्सपेरिमेंट करने वाला था। वो एक्सपेरिमेंट शुरू करता है और कामयाब हो जाता है। और फिर वो एंटीडोट मार्टिन को देता है और बोलता है आप सब तुम्हारे हाथ में है। वो उसे हौसला देती है और फिर उसकी पीठ पर वो इंजेक्शन देती है, जिसे माइकल को बहुत ही ज्यादा तकलीफ होती है। और उसके बाद वो माइकल को बांध देती है। माइकल के जिस्म में अजीब हलचल महसूस होती है। शिप में मौजूद एक आदमी उस लैब में आता है और मार्टिन से बात करने लगता है, लेकिन अब माइकल वहां पर नहीं था। वो शिप की छत पर लटका हुआ था। वो आदमी और उसके साथ जो भी लोग मौजूद थे वो माइकल पर गोलियां चलाने लगते हैं, लेकिन माइकल को कुछ नहीं होता क्योंकि वो एक वैम्पायर बन चुका था जो लोगों का खून पीता था। वो शिप में मौजूद सब आदमियों को मार देता है और मार्टिन भी बेहोश हो जाती है और माइकल भी। जब माइकल को होश आता है वो खुद को देखता है एक वैम्पायर के रूप में। फिर वो आराम आराम से ठीक हो जाता है और वो वहां मरे हुए सब लोगों को देखता है। और उसके बाद वो पुलिस को इत्तला करता है कि हम एक शिप में हैं, आप जल्दी से कोई मदद भेजें। लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं होता। और उसके बाद वो सीसीटीवी फुटेज में देखता है। वो हैरान रह जाता है और फिर वो शिप से गायब हो जाता है। शिप पर पुलिस वाले आते हैं और 8 लाशें देखते हैं जिनके अंदर खून का एक कतरा भी नहीं था। सिर्फ मार्टिन एक जिंदा थी जो कि बेहोश थी। जब उसे होश आता है वो हॉस्पिटल में होती है। माइकल उससे मिलने आता है और उसे माफी मांगता है और कहता है कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। वो उसे माफ कर देती है। वो कहता है कि मैं तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगा और फिर वहां से चला जाता है अपनी हॉस्पिटल जहां उसे खून की तलब होने लगती है। वो खूब खून पीता है और उसके बाद वो इंसानी रूप में वापस आ जाता है। और अब वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर था। वो बिल्कुल ठीक हो चुका था, लेकिन वो खुद पर काबू नहीं पा सकता था। और तभी माइलो उससे मिलने आता है। माइकल की हालत बहुत खराब थी, उसे खून की तलब लगी हुई थी। वो माइलो से कहता है कि मुझे खून चाहिए। माइकल उसे फ्रीजर से खून उठाकर देता है। वो पीता है और फिर वो ठीक हो जाता है। माइलो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि तुमने कर दिखाया, अब तुम चल भी सकते हो, मुझे भी वो एंटीडोट चाहिए। माइकल कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें वो नहीं दे सकता, ये गलत है और इसे कंट्रोल करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। ये एक बहुत बुरी बद्दुआ है, इसीलिए यहाँ से चले जाओ। और वहाँ डॉक्टर मार्टिन से पुलिस पूछताछ करती है कि आप भी वहाँ मौजूद थी, उस शिप पर क्या हुआ था? लेकिन वो कहती है कि मुझे कुछ भी याद नहीं है। और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। माइकल माइलो को बहुत समझाता है लेकिन वो नहीं समझता और कहता है कि मुझे भी चाहिए। आखिरकार माइकल उसे जबरदस्ती हॉस्पिटल से बाहर निकाल देता है और उसके बाद खून के कुछ पैकेट्स लेता है, अपनी बैग में डालकर हॉस्पिटल से जाने लगता है। और तभी वहाँ कुछ पुलिस ऑफिसर्स आ जाते हैं और कहते हैं कि हमें आपसे कुछ सवाल करने हैं। वो कहते हैं कि पूरी जिंदगी आपने अपनी बीमारी का इलाज ढूंढने के लिए पागलों की तरह गलत गलत एक्सपेरिमेंट करते रहे हैं और उस रात भी आप ही शिप पर गए थे कोई एक्सपेरिमेंट करने, इसीलिए हमें आपको गिरफ्तार करना होगा। और तभी माइकल एक वैम्पायर बन जाता है और वहां से भागने की बहुत ज्यादा कोशिश करता है लेकिन नाकाम रहता है। पुलिस उसे पकड़ लेती है और जेल में बंद कर देते हैं। और तभी वहां माइलो आ जाता है उससे मिलने के लिए और कहता है कि मैं तुम्हें बाहर जरूर निकालूंगा। और उसके बाद उसका टाइम खत्म हो जाता है। पुलिस वाले उसे कहते हैं कि अब आप यहाँ से जा सकते हैं। वो वहां से चला जाता है। माइलो बिल्कुल ठीक हो चुका था, वो बगैर स्टिक की मदद से चल रहा था। माइकल समझ जाता है कि इसने वो एंटीडोट ले लिया है। वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और जेल तोड़कर वहां से भाग जाता है। और वो माइकल को पकड़ने की बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं लेकिन नाकाम रहते हैं।
माइकल सीधा माइलो के पास जाता है और उसे पकड़ लेता है और बोलता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। माइलो कहता है कि मुझे ठीक होना था, तुम खुद ठीक हो गए और तुमने मेरा इलाज नहीं किया था, तो कि मैं क्या करता, बैठकर अपनी मौत का इंतजार करता। इसीलिए मैंने वो एंटीडोट ले लिया और अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बहुत ही ज्यादा ताकतवर हूँ, मैं वापस उस दुनिया में अब कभी नहीं जाऊंगा। माइकल उसे समझाने की बहुत ज्यादा कोशिश करता है, लेकिन वो माइकल से लड़ना शुरू हो जाता है। वो दोनों लड़ते हैं और तभी वहां पुलिस आ जाती है। माइलो उन सबको मार देता है और उसके बाद वो माइकल से फाइटिंग करता है। माइकल उससे लड़ना नहीं चाह रहा था, इसीलिए वो वहां से भाग जाता है। पुलिस उस जगह पहुंच जाती है जहां माइलो ने बहुत लोगों का खून किया था और वहां माइकल छुपकर एक बस में मार्टिन से मिलता है। फिर वो दोनों कॉफी शॉप पर जाते हैं और वहां खूब बातें करते हैं। माइकल उसे बताता है कि मुझे खून की तलब ज्यादा होने लगती है और मैं अब वापस इंसान नहीं बन सकता हूँ। और तभी वहाँ कुछ लोग आते हैं जो आपस में बात करते हैं कि हमें लैब जाना है। माइकल कहता है कि मुझे लैब से कुछ सामान चाहिए और फिर वो जल्दी से लैब जाता है जहाँ पहले ही लोग मौजूद थे। माइकल उन्हें डरा कर भगा देता है और फिर वो खुद एक एंटीडोट बनाने की कोशिश करता है। माइलो अपनी नई ताकत से बहुत ही ज्यादा खुश था। वन नाइट वो बार जाता है जहाँ उसे एक लड़की मिलती है जो कि उसे अच्छी लगती है, लेकिन उसके फ्रेंड्स माइलो का मजाक उड़ाते हैं। माइलो गुस्से में बाहर चला जाता है और वो बार के बाहर ही वेट करता है। जैसे ही वो लोग बाहर आते हैं, माइलो उन सब पर हमला करके उन्हें मार देता है और उसके बाद वो मार्टिन से मिलने आता है और उसे कहता है कि माइकल कहाँ है। वो कहती है मुझे कुछ भी नहीं पता, मुझे नहीं पता कि माइकल कहाँ है। और उसके बाद वो वहां से चला जाता है। मार्टिन माइकल से मिलने जाती है और माइलो उन्हें साथ में देख लेता है। अगले दिन बार के बाहर ही बहुत पुलिस जमा थी और वो सीसीटीवी फुटेज देखते हैं कि आखिर कल रात किसने इतने सारे खून किए। उन्हें एक अनजान चेहरा नजर आता है जो वो पहचान नहीं पा रहे थे। डॉक्टर नेकलेस पहचान लेता है कि ये तो मेरा बेटा है। वो घर जाता है और माइलो से कहता है कि मैं सब कुछ जान गया हूँ कि तुम कौन हो, और वो उसे बहुत ज्यादा समझाता है, लेकिन माइलो उसकी नहीं सुनता और उसे जान से मार देता है। और वहाँ माइकल ने एक जहर तैयार किया था अपने लिए, क्योंकि उसका कहना था ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है और इसीलिए मैं खुद को खत्म कर देना चाहता हूँ। और वो मार्टिन को कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ। और उसके बाद नेकलेस उसे कॉल करता है। वो जल्दी से माइलो के घर जाता है और देखता है कि नेकलेस के अंदर कुछ सांसें मौजूद थी। वो माइकल से कुछ बात करता है और उसके बाद मर जाता है। और वहाँ माइलो मार्टिन को भी मार देता है। माइकल बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और फिर वो माइलो के पास जाता है। वो खूब फाइटिंग करते हैं और फिर माइकल उसे वो जहर वाला इंजेक्शन दे देता है। माइलो मर जाता है और उसके बाद माइकल वहां से चला जाता है और इसी तरह कहानी का दी एंड हो जाता है।